Good evening, everyone. Today, for our Ganga Jamni Facebook Live episode, we have with us Mahmood Farooqi. Although he does not need introduction, but I want to make this connection right. I first met Mahmood, I was introduced to him by my college senior Anusha Rizvi in 2006. We were among the audience at Sri Ram Kala Kendra and we were watching Agra Bazaar. Now, the most impressive part of the first meeting that I had with Mahmood was that I felt that he knew the lines of the play verbatim, and or at least that appeared to me. In 2010, Mahmood accepted my invitation to come to my school where I was a teacher and lead a workshop and a performance with his group of Dastan goers in Banaras. Now, you can't imagine the spell that these people created. My students still remember that evening and how charmed and completely enchanted they were by their absolutely unique way of storytelling. In fact, I have to say that it was probably the first time that most of these people had heard Urdu or any kind of storytelling or play acting in that language. So they weren't really accustomed to it. Years later, even now, they talk about this on our WhatsApp groups, and whenever we meet, they remind me of that evening and they thank me for having organized that. So it's very interesting that this episode, that this session we are having is on popular demand. Mahmood is someone who likes to keep his work to live audiences, and I know that, but my students would not have been okay if I did not have Mahmood with us today. And his commitment to social causes and constantly trying to make his audience go towards a sort of sense of higher awareness is what my students continue to like about him. So here I have, and everyone at Rajghat, you can rejoice because we have Mahmood Farooqi with us today on Ganga Jamuni Live. Hello, greetings Mahmood. थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। मुझे बहुत खुशगवार यादें हैं उस ट्रिप की 2010 में जब मैं वहाँ गया था। बहुत ही खूबसूरत कैंपस है गंगा किनारे और बहुत ही लाजवाब ट्रिप थी। थैंक यू वेरी मच फॉर हैविंग मी हियर। Yeah, it was wonderful. I mean, the whole team was there. It was just amazing. So, Mahmood, I'm going to ask you this, I'm going to shoot this first question to you. ये आपकी personal life से related है। मैं ये पूछूंगी कि पेरेंट्स जो हैं जनरली अपने बच्चों को एडवाइस करते हैं कि जब वो अपनी करियर चॉइसेस बनाते हैं तो आप एक स्टेडी इनकम का सोर्स रखें बच्चे और बाकी अपना जो पैशन है उसको साइड पे या वीकेंड पे कर लें। लेकिन आपने, और मैं आपसे इसलिए कह रही हूँ क्योंकि आप एक एक्सीलेंट स्टूडेंट थे और आप बहुत स्कॉलरशिप पे दूध स्कूल पढ़े हैं और और आप फिर उसके बाद रोड स्कॉलर रहे और आप ऑक्सफोर्ड गए। ये कोई मामूली चीजें नहीं हैं। तो आप इन सब चीजों में आपने एक पॉसिबिलिटी, जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग पॉसिबिलिटी थी कि आप एक एकेडमिक बन सकते थे और आप एक स्टेडी सोर्स ऑफ इनकम कर सकते थे, तो आपको कोई डर नहीं लगा, कोई आपको रिस्क महसूस नहीं हुआ कि जो आप ये काम कर रहे थे एक लॉस्ट फॉर्म ऑफ स्टोरी टेलिंग को रिवाइव करने का, आपको कभी शक लगा जब आप ये इस राह पर चलने लगे? नहीं, बिल्कुल, बहुत देखिए, obviously, someone with my background in education, it was, even going into the arts was not something that one would expect, मतलब चलो कॉलेज के बाद कर लेते आप। When I went to Oxford, when I went to Cambridge, I did my MPhil. After that, none of my peers could have thought or imagined choosing a line like this. It's just that, with Dastan going, what happened, I did my MPhil in Cambridge and I came back to India and I did a little bit of work in the media. There is a line मैं राग दरबारी की दास्तान में यूज़ करता हूँ। हमारे यहाँ जो लोग इतिहास में MA करते हैं, जैसे मैंने इतिहास में MPhil किया कैम्ब्रिज से, वो आके समाज में हमारे सोचने समझने वाले जो लोग हैं वो या तो आर्टिस्ट बन सकते हैं या एक्टिविस्ट बन सकते हैं या फिर वो स्कॉलर बन सकते हैं। और हमारे समाज में जो तीनों नहीं बन पाता वो सिविल सर्वेंट बन जाता है और जो सिविल सर्वेंट भी नहीं बन पाता वो जर्नलिस्ट बन जाता है। तो मैंने सिविल सर्वेंट, एक्टिविज्म, स्कॉलरशिप सब कुछ छोड़ के सीधे मैं जर्नलिज्म की लाइन पे गया जी। लेकिन मुझे कुछ खास मजा नहीं आया। क्रिकेटर का बैकग्राउंड था और फिर ये था कि भाई एक ही बार आदमी जिंदगी जीता है
अब जिंदगी जीने में क्या है कि जिस चीज में आप दिन में 10 घंटे 12 घंटे वक्त अपना बिता रहे हैं, वो क्या चीज हो, सिर्फ जीविकोपार्जन के लिए या सिर्फ रोजी रोटी कमाने के लिए, वो एक तरह के, वो फैज का बड़ा अच्छा शेर है, तुर्की शायर नाजिम हिकमत का उन्होंने किया तर्जुमा कि मरने के लिए जीना ये कैसी हिमाकत है, मरने के लिए जीना ये कैसी हिमाकत है, और जीने के लिए मरना ये कैसी सआदत। तो वो लाइन मीडिया की जिसमें जीने के लिए मरना पड़े घुट घुट के, मुझे लगा ये ठीक नहीं है। मैंने हिस्ट्री पढ़ रखी थी चूंकि, और दास्तान वही मैं अलग से इसका जवाब दूंगा, काफी चीजें मिलजुल के आई। तो मैंने जब एनडीटीवी की नौकरी छोड़ी जब मैं था, तो वालिदैन मेरे फादर हमेशा कहा करते थे, क्योंकि वो खुद सिविल सर्वेंट थे और हिंदुस्तान से 100-150 बरस से मिर्जा गालिब के ज़माने से आज तक उत्तर प्रदेश, बिहार, जो भी हमारा जो हमारा जो जिसे काउ बेल्ट कहा जाता है, वहाँ हर बाप का ख्वाब होता है कि बेटा डिप्टी कलेक्टर बन जाए। तो डिप्टी कलेक्टर इन्होंने भी चाहा था, कहा ऑक्सफोर्ड में भी मैं था, उन्होंने कहा बेटा तो इम्तिहान दे लो, क्वालिफाई करके छोड़। मैंने कहा मैं कितनी चीजों में क्वालिफाई करता रहूंगा, ऑक्सफोर्ड भी क्वालिफाई कर लिया, केम्ब्रिज भी क्वालिफाई कर लिया, बहरहाल मैं उनकी ख्वाहिश पूरी नहीं कर पाया। मेरे छोटे भाई ने उनकी ख्वाहिश पूरी की। हाँ, तो बिल्कुल हमारे यहाँ ये जरूर डर था लोगों को, और अभी भी अब थोड़ा कुछ कम हो रहा है कि भाई अगर इस लाइन में जाओगे तो फिर रोजी रोटी कैसे खाओगे। तो उसमें दो चीजें हैं, एक चीज होती है, एक चीज पेशे से जुड़ी होती है कि आप उसमें आपकी आमदनी हो रही है कि, और दूसरी उसका एस्पेक्ट है प्रेस्टीज से। तो आमदनी तो हो रही है, आमदनी जैसे हमारे यहाँ बहुत सारे लोग जो मीडिया में काम करते हैं, जैसे मान लीजिए उन्होंने अपना एक स्टूडियो सेटअप कर लिया, साउंड रिकॉर्डिंग हो रही है या वो कुछ और इस तरह का टेक्निकल काम कर रहे हैं, आमदनी हो रही है, लेकिन समाज में उनको उस तरह का प्रेस्टीज अभी भी शायद नहीं हासिल है जो एक सिविल सर्वेंट को हासिल है। तो ये दोनों सवाल थे कि प्रेस्टीज कैसे हासिल होगी, और आदमी अपनी कला में जाएगा तो उसको ये चीज, इसको आमदनी कैसे हासिल होगी। यही चीज स्पोर्ट्स के साथ थी मेरा ख्याल है 20 वर्ष पहले तक, लेकिन अब पिछले 5, 7, 8 साल से स्पोर्ट्स जो है हमारे यहाँ न सिर्फ एक करियर बन के उभरा है, लेकिन एक ऐसा करियर बन के उभरा है जिसमें रेस्पेक्ट भी शामिल है। तो वो भी अब ये चीज अभी हमारी फील्ड के साथ, थिएटर के साथ या स्टोरी टेलिंग के साथ, परफॉर्मिंग आर्ट्स के साथ इतनी नहीं हुई है, लेकिन मुझे यकीन है कि धीरे धीरे जैसे सोसाइटी डाइवर्सिफाई करेगी वैसे होगा। लेकिन अब इस सवाल का दूसरा पहलू है कि मैं अभी हाल में बाप बना हूँ जी। तो अब मेरा बेटा अगर आगे जाके 16 साल की उम्र पे या 17 बरस की उम्र में कहे कि पापा मैं तो सिर्फ जो है वो पैराग्लाइडिंग करना चाहता हूँ सारी जिंदगी, हाँ। या मैं तो सिर्फ सर्फिंग में अपनी जिंदगी गुजारना चाहता हूँ, तो मैं नहीं जानता कि अभी से कि मेरा उसके बारे में क्या रवैया होगा। हाँ। ये जरूर है कि चूंकि मैंने अपने माँ बाप से बहुत लड़ाइयाँ लड़ी और बहुत वक्त लगा उनको ये समझने में कि मैं जो कर रहा हूँ उसकी अपनी अहमियत है। क्या देखिए आप हमारे इस तरह सब चीजों में माँ बाप की गलती, जिस समाज में आप रहते हैं, जब 5 औरतें मिलती हैं पार्क में या लोग मिलते हैं पार्क में या ऑफिस में और ये बताते हैं कि मेरा बेटा क्या कर रहा है, तो ये बने बनाए खांचे हैं, डॉक्टर है, इंजीनियर है, अमेरिका में है, फलानी जगह पढ़ा रहा है। ये पढ़ाने वाला भी पहले नहीं था 20 साल पहले, लेकिन अब ये है कि अभी अशोका में पढ़ा रहा है या यहाँ पढ़ा रहा है, तो अब तनख्वाहें अच्छी हो गई। अब माँ बाप जो जिस सर्कल में घूमते हैं, समाज जिन सर्कल को, जिन चीजों को समझता है कि हाँ जी ये अप्रिसिएशन के काबिल है, वही चीजें, वही वैल्यूज और मान्यताएं हमारे माँ बाप लेते हैं या हमारे अपने रिश्तेदार लेते हैं, क्योंकि वो रिश्तेदार कहीं अपनी माँ के पेट से तो वो वैल्यूज लेके आते नहीं। जो आसपास डिस्कशन होता है, जो आसपास सुनते हैं, वही चीजें समझते हैं। तो हमारे यहाँ यही समझा जाता है रागी जी डॉक्टर है, इंजीनियर है, मीडिया में है, ये चीजें समझी जाती रही। इसलिए मेरे माँ बाप को आज तक मेरे भाई भी कहते हैं कि भैया समझ में नहीं आता लोगों को कैसे बताएं कि तुम क्या करते। और अभी भी लोग पूछते हैं दास्तान हुई क्या होती है, मेरे को पूछते हैं बताइए इनको। हाँ। तो मैं कहता हूँ जी मैं करता हूँ, ये एक काम है मेरा, मैं करता हूँ। अब मैं बताना ये मेरा काम नहीं है, मैं तो करता हूँ, बताना आपका काम है। हाँ। जैसे एक बार फैज साहब से पूछा जावेद अख्तर ने कि आप फैज साहब इतनी अच्छी शायरी लिखते हैं लेकिन आप पढ़ते इतनी बुरी है। तो फैज साहब ने कहा साहब दुनिया का हर काम मैं थोड़ी करूंगा, मैं शायरी लिख लेता हूँ, ये क्या काफी नहीं? तो ये है, तो इसमें मेरा ख्याल है आप देखें थोड़ा सा पीछे हटके, तो जैसे 3 इडियट्स जो फिल्म आई थी जी, उस फिल्म में इंजीनियरिंग कॉलेज में ये दिखाया गया था कि कैसे माँ बाप जबरदस्ती अपने बच्चों को इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ने भेजते हैं।
और जो फिल्म को सबसे ज्यादा जिन लोगों ने पसंद किया वो वही इंजीनियर थे, जो अच्छी नौकरियां करके लाखों रुपए तो कमा रहे हैं, लेकिन उनके दिल में एक कसक है कि यार मैं भी कॉलेज में एक्टिंग करता था यार, काश मुझे चांस मिल जाता, या मतलब हालात ऐसे थे यार, घर वाले ऐसे थे, जिम्मेदारियां थी, ये थी, तो कसक रहते आती है दिल में। ये मैं नहीं कहता कि कलाकार के दिल में कसक नहीं होती, जिंदा जो भी जिंदा है उसके दिल में कुछ ना कुछ कसक तो रहती है। जी जी बिल्कुल। आपके बेटे के बारे में तो मेरा ख्याल है दोनों के दोनों पेरेंट्स इतने लायक हैं तो डेफिनेटली कुछ ना कुछ तो करेगा, चाहे वो घोड़ों के साथ खेले या जो मर्जी करे, he'll do fabulously well. That I can assure you. देखिए मेरे पेरेंट्स भी बहुत लायक थे, लेकिन ये कोई जरूरी नहीं है कि मैं भी बहुत लायक पैदा हूं। अच्छा, you're being very modest now. Okay, so आप एक बात बताएं, I want you to take us through the journey कि आप नए आए हैं, एनडीटीवी की नौकरी छोड़ी आपने, फिर आप रिसर्च करी। बाय द वे आपकी किताब रिसर्च जो है वो हमको बहुत पसंद है, और अभी रिसेंटली सुहेल साहब आए थे हमारे शो पर और उन्होंने बोला कि इट्स वन ऑफ द टॉप 5 बुक्स दैट ही वुड रेकमेंड फॉर दिल्ली हिस्ट्री। सो कि बहुत अच्छी किताब है। तो आप बताएं कि मतलब आपने बहुत सारे रोल्स मतलब अदा किए उस वक्त, लेकिन आप कॉन्स्टेंटली यू वर ट्राइंग टू रिसर्च, तो आपको लगता है कि आप अपने आप को प्राइमरीली उस दौरान में क्या रिसर्चर बोलेंगे? और दास्तान को शुरू करने से पहले जी हाँ राइटर कह सकती हैं आप। मैं न्यूज़पेपर्स में लिख रहा था, चीजें इधर उधर की लिख रहा था, तो राइटिंग है हर तरह का। जर्नलिज्म भी एक तरह का राइटिंग है, स्कॉलरशिप भी राइटिंग है, नॉवेल्स भी राइटिंग है, और अब तो सॉफ्टवेयर राइटिंग, पता नहीं कितनी तरह की राइटिंग्स दुनिया में मौजूद हैं। व्हाट्सएप पे भी राइटिंग करते हैं लोग, और एक्चुअली आज की डेट में लोग कहते हैं कि पढ़ना लिखना कम हो गया, पर मुझे लगता है आज की डेट में हम जितना ज्यादा पढ़ लिख रहे हैं उतना हमने पहले के दौर में कभी नहीं पढ़ा लिखा था। हम भले किताबें नहीं पढ़ रहे हैं, लेकिन हम टेलीविजन पे जब भी न्यूज देखते हैं तो हम नीचे वो स्क्रॉल आ रहा है वो पढ़ रहे हैं, व्हाट्सएप पे चीजें पढ़ रहे हैं, हम अपने वीडियो फोन पे चीजें पढ़ रहे हैं, हम एयरपोर्ट पे चीजें पढ़ रहे हैं, ट्रेन स्टेशन पे चीजें पढ़ रहे हैं। एक्चुअली जो है ये जो इंटरनेट आया है, कंप्यूटर्स आया, उन्होंने जो रीडिंग हमारी है उसको बहुत बढ़ावा दिया है। अच्छा। एक तरह से देखा जाए तो ये विजुअल एज के बावजूद, क्योंकि आप ये गौर करें आजकल जो भी लोग हमारे बड़े बड़े कजिन्स जो MFL हैं, जिन्होंने कभी जिंदगी में अखबार भी मुश्किल से पढ़ा था, वो भी दिन भर फोन पे कम से कम कुछ नहीं तो 2-3 घंटे तो पढ़ ही लेते हैं। व्हाट्सएप जोक्स पढ़ लेते हैं, मैसेजेस पढ़ लेते हैं। इतनी पढ़ाई उन्होंने MA में कर ली होती तो वो शायद फिर जो है वो कहीं सरकारी नौकरी में लग गए होते। तो कहने का मतलब मेरा ये है कि जिस जमाने में मैं आया था ये छोड़ के और NDTV में था, उस समय मीडिया का काफी उरूज था, लेकिन मुझे ये एहसास हो गया कि मैं मीडिया में काम नहीं करना चाहता, मैं सरकार में काम नहीं करना चाहता था। तो मैं उन दिनों जर्नलिज्म वगैरह कर रहा था। उस जमाने में मैंने शम्सुर रहमान फारूकी साहब की किताब पढ़ी। शम्सुर रहमान फारूकी साहब उर्दू के सबसे बड़े राइटर और क्रिटिक हैं, और रिश्ते में मेरे आया लगते हैं, मेरे फादर के कजिन हैं, बड़े अब्बू हैं मेरे। बचपन से मैंने उनको आइडलाइज किया है। उर्दू मेरी कभी उतनी ज्यादा अच्छी नहीं थी जैसे उर्दू लोगों की होती है, तालिब इल्मों की या लोगों को शायरी याद होती है, लेकिन उनकी चीजें मैं पढ़ लेता था। तो जब उनकी किताब मैंने पहली बार पढ़ी 2000 में NDTV की नौकरी छोड़ने के बाद, तो उसका नाम था साहिरी शाही साहिब ईरानी, दास्तान अमीर हमजा की रिवायत। तो उसमें मैंने पहली बार पढ़ा कि जी दास्तान गोई क्या चीज होती थी, अमीर हमजा कौन थे, ये क्या रिवायत थी, किस तरह से लोग पढ़ते थे, सुनाते थे। अब वो क्या था कि मैं हिस्ट्री का स्टूडेंट था, तो चूंकि हिस्ट्री का स्टूडेंट था, मैंने MPhil किया था, 18th सेंचुरी पे मैंने काम किया था, और फारूकी साहब ने अपनी किताब में दिखाया था कि कैसे 19th सेंचुरी में की जो हिस्ट्री है, खासतौर से 1857 की हार के बाद से किस तरह हिंदुस्तानियों ने अंग्रेज कल्चर के सामने घुटने टेके, और किस तरह अंग्रेज कल्चर ने हमारे कल्चर को डेनिग्रेट करके अपना कल्चर इम्पोज किया। तो उस किताब दास्तान गोई की किताब, दास्तान गोई की जो खुद हिस्ट्री थी वो वही हिस्ट्री थी एक तरह से जो मैं अभी पढ़ के कैम्ब्रिज से आया था। तो एज अ हिस्टोरियन या एज अ स्टूडेंट हिस्ट्री वो चीज बड़ी जेल की। फिर जब मैंने एक्चुअल दास्तानें पढ़ी तो मुझे लगा यार ये तो चीज ऐसी है कि जिसमें जो लिख रहा है दास्तान वही उसको सुना रहा है, और वो उसमें इम्प्रोवाइजेशन भी कर रहा है। तो ये एक ऐसा फॉर्म है जहाँ राइटर, परफॉर्मर, एक्टर, थिएटर और लिटरेचर
आके इस तरह से फ्यूज हो जाता है जो मुझे हिंदुस्तान में या बल्कि दुनिया में भी किसी जबान में मुश्किल से मिलता है। इसके मिसाल के तौर पे आप देखें तो अगर इसको कंपैरिजन करें खासतौर से जो लिटरेरी स्टैंडर्ड दास्तानों का था, पुरानी दास्तानों का, कि जैसे कोई आदमी है, जैसे शेक्सपियर है, वो अपने नाटक जो है वो नाटक नहीं है, जब मैंने पढ़ा तो जिसको उर्दू में कहते हैं मेरे 14 तबक रोशन हो गए, एकदम मेरी आंखें खुल गई। मैंने कहा ये क्या शानदार चीज थी। ये वक्त था 2000-2002 के आसपास का। अगले 2-3 साल में इसके इर्द गिर्द भटकता रहा, कभी ये सोच के कि डॉक्यूमेंट्री बनाई जाए, कभी ये सोच के, मेरा ये उस वक्त मेन इंटेंशन था कि लोगों को किस तरह इस रिवायत के बारे में बताया जाए। मैंने लिखा इसके बारे में। अब चूंकि मैं खुद थिएटर के बैकग्राउंड से था और मुझे इस तरह की चीजों में इंटरेस्ट था, लेकिन ये ऐसी चीज है कि जिसको हमारे समाज ने छोड़ दिया था। तो कोई भी हमारा लिटरेचर का या थिएटर का स्टूडेंट, ये काउंटर इंट्यूटिव है। यानी कहने का मतलब ये कि इस चीज को उठाना ऐसा है जैसे कोई कहे कि अरे यार चलो अभी रामचरितमानस पे नाटक बना। हमारे हिंदुस्तान में कोई ऐसा नहीं है जो कहेगा अरे यार रामचरितमानस पे नाटक बनाते हैं। वो कहेंगे यार ब्रेस्ट पे नाटक बनाते हैं, वो कहेंगे यार हम जो है शेक्सपियर पे नाटक बनाते हैं, शॉ पे नाटक बनाते हैं, या हम धर्मवीर भारती पे नाटक बनाते हैं, या फिर हम मोहन राकेश पे नाटक बनाते हैं। तो ये नहीं सोचता है कि यार हमारा जो ये क्या नाम है, हमारे जो चैती Mahmood, we lost you for a bit. Mahmood, can you hear me? हाँ जी। Sorry. So you were saying that आपकी आवाज थोड़ी कट रही है। Yes, sorry. You were saying that मोहन राकेश पर बहुत सारे और मैं कह रहा था दास्तान, मोहन राकेश पे नाटक कर लेना ठीक है, लेकिन ये जो चैती है या कजरी है या विदेशिया है या हमारी जो होली की ट्रेडिशन है या हमारी जो कृष्ण भक्ति की ट्रेडिशन है या हमारे जो कृष्ण पुराण है, पुराण को लेके स्टेज पे कुछ किया जाए, ऐसा कोई लेफ्टिस्ट हमारे यहाँ ये नहीं सोचता है कि यार पुराणों को लेके कुछ किया जाए, क्योंकि उनकी नजरों में पुराण गई गुजरी चीजें जिनसे हमारे मॉडर्न समाज का कोई भला नहीं हो सकता। अच्छा, हाँ। और मेरी नजर में आज की डेट में ये बहुत ही गलत सोच है आपकी, और ये बिल्कुल ही बेबुनियाद सोच है, और ये सोच झूठ है। अगर आप उन्हें पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि उनके अंदर कैसी जबरदस्त कहानियां हैं। और मैंने देवी भागवत पुराण पढ़ा है अभी पिछले दिनों, जब मैं माँ सरस्वती के दास्तान बना रहा था, तो उनके अंदर जबरदस्त कहानियां हैं। वो लोग बड़े कमाल के स्टोरी टेलर्स थे। यही चीज दास्तान गोई के साथ। अच्छा। अब मसला दास्तान गोई के साथ ये था कि पिछले 100 साल में हमारे वो लोग जो खुद को मॉडर्न समझते थे या प्रोग्रेसिव समझते थे या लेफ्टिस्ट समझते थे या रेडिकल समझते थे, उन सब ने ये सोचा कि यार इसमें तो सिर्फ वो जादू है, इसमें तो ये वो है, कहानियां हैं, ये तो एस्केपिस्ट है, ये तो बच्चों के लिए है, इसमें कोई मतलब मैच्योरिटी नहीं। तो इस चीज को उठाने के लिए कोई शमसुर रहमान फारूकी जैसा आदमी चाहिए था जिसको इतना कॉन्फिडेंस हो कि वो 20 साल लगा के ये 46 वॉल्यूम्स पढ़े। जैसे आपको पता है कितने पुराण हैं हमारे यहाँ समाज में, हमारे यहाँ शास्त्रों में कितने पुराण आए हैं, कितनी स्मृतियां आई हैं, लेकिन कोई मॉडर्न स्कॉलर जो ऑक्सफोर्ड कैम्ब्रिज गया हो और अंग्रेजी बोलता हो और दिल्ली के बूर्जुआ सर्कल्स में, एलीट सर्कल्स में घूमता हो, वो किसी पार्टी में फख्र से ये नहीं बताता कि अरे मैंने यार आज 18 पुराण पढ़े। वाह। ये जरूर कहेगा यार मैंने शेक्सपियर पढ़ा, मैंने होमर पढ़ा, मैंने फलाना जर्मन राइटर पढ़ा, मैंने ये पढ़ा। वो ये नहीं कहेगा यार भागवत पुराण बड़े कमाल की चीज है, या वो ये नहीं कहेगा कि अरे यार मैंने कुतुब शाह पढ़ा, बड़े कमाल की चीज है। वाह। तो कहने का मतलब ये कि आपकी जो आइडियोलॉजी है उसने इन चीजों को हाशिए के परे ढकेल दी जी। इसको उठाने के लिए कोई शमसुर रहमान फारूकी साहब जैसा दीदावर चाहिए था, उनको पकड़ के, उनका दामन पकड़ के, और कुछ जो मेरी अपनी हिस्टोरिकल पॉलिटिक्स जो डेवलप हुई थी, मेरी जो अपनी लिंग्विस्टिक पॉलिटिक्स डेवलप हुई थी, कि मुझे ये कॉन्फिडेंस था कि ये चीज बहुत जबरदस्त चीज है, इस चीज में जबरदस्त ड्रामा है, इस चीज में जबरदस्त डायलॉग्स हैं, इस चीज में जबरदस्त मजा है। तो ये कॉन्फिडेंस मुझे था उन दास्तानों को पढ़ के, तो मैंने उसको उठाया। और फिर वो 2005 में पहला शो हमारी प्रोड्यूसर अनुषा रिजवी जो मेरी पार्टनर है, उनकी मदद से हमने किया, और वो पहला शो ही बहुत हिट रहा। हिमांशु त्यागी मेरे स्कूल के पुराने दोस्त थे, दून स्कूल में मैं था, तो वहाँ भी हम लोग साथ थिएटर करते थे जी। हमने बाद में भी तनवीर साहब के साथ भी उन्होंने काफी काम किया था।
उनकी मदद से उनके साथ लेके मैंने पहला शो किया, बहुत हिट हुआ। फिर उसके बाद से फिर दरवाजे अपने आप खुलते चले गए, लोग साथ आते गए। महमूद, आपने ये स्टाइल कैसे बनाया? बिकॉज आई बिलीव मीर बाकर अली तो मतलब वो तो 1920 में शायद उनका लास्ट वो था, देयर इज नो रेफरेंस पॉइंट। हाउ डिड यू डेवलप दैट स्टाइल? Yes, I think that's a very good question. Thank you for asking that question. क्योंकि लोग समझते हैं कि दास्तान गोई है तो मतलब जैसे हो रही थी वैसे ही हो रही है, ऐसा नहीं है। दास्तान गोई का जो मॉडर्न शो है वो बहुत ही मॉडर्न शो है, उसको डिवाइस किया गया है। उसको मैंने, अनुषा ने मिलके फारूकी साहब की मदद से एक मॉडर्न फॉर्म दिया। अब हमें ये पता था इतना कि जी वो बैठ के पढ़ते थे, रोजानू बैठ के वज्रासन, इतना हमें पता था। अब इस चीज को जब मैंने कहा, मैंने पढ़ा, मैंने कहा नहीं, हमें एक नहीं, हम 2 नरेटर्स को लेंगे। क्योंकि हमारे यहाँ आजकल ना किसी सुनाने वाले में वो औकात है कि वो इतनी देर तक सुना सके, ना उसके अंदर वो टैलेंट है, ना सुनने वाले में इतना पेशेंस है कि वो एक ही आदमी को सुन सके। उसके अलावा जब 2 आदमी बैठते हैं, एक आवाज में दूसरी आवाज मिलती है, तो वहां से वो नाटकीयता पैदा होती है, एक थिएट्रिकल चीज पैदा होती है, लिरिसिज्म पैदा होता है, म्यूजिक पैदा हो जाता है। एक आवाज में जब दूसरी आवाज मिलती है तो वो एक म्यूजिकल बैंड बन जाता है। इसलिए मैंने शुरू से ही मुझे लगा कि 2 लोगों को बैठाना चाहिए। फिर उसको जो डिवाइस किया कि जी तख्त पे बैठाना चाहिए। तख्त हमारे आजकल यूज नहीं होता, हाँ कभी कभी दीवान हम यूज करते हैं, लेकिन हमारे बचपन में हमने देखा था नानी हमारी तख्त यूज करती थी। अब कोई ये नहीं समझता कि जी तख्त जो है वो हाशिए पर चीज है, उसको लेके सेंटर स्टेज लाना अपने आप में एक चीज है कि भाई कॉन्फिडेंस आपको होना चाहिए कि नहीं जी ये तख्त बड़े कमाल की चीज है। और इस चीज को, तख्त को, उसका जो एज फर्नीचर के हिसाब से उसकी जो यूटिलिटी है, उसकी जो डिजाइन है, उसका जो अफादियत है, उसका वो उसको ड्यू नहीं मिला है एज एन ऑब्जेक्ट, as something created out of a craft. So the takht came in. Then I had always seen my nani drinking from a katora. The transition from a katora to a glass is also a political transition. So I said, no, let's have a katora, katora में पानी पीते। Then we sat down, Anusha and I, कि भाई dress कैसा होना चाहिए? Then we said, let's bring the angarkha back, which we don't wear now, but which was a non-denominational dress. उसमें कोई हिंदू मुस्लिम का एंगल नहीं था पहले। और फिर ये जो दुपल्ली टोपी है, ये भी मैंने कहा कि जी दुपल्ली टोपी क्या, एक जमाने में गांधी टोपी की दुपल्ली होती है, महाराष्ट्र में आज भी कामगार जो है आप देखते हैं वो दुपल्ली टोपी पहनता है, होली पे भी हम दुपल्ली टोपी पहनते हैं, रामपुर के कव्वाल भी दुपल्ली टोपी पहनते हैं। ये जो स्कल कैप है वो बहुत बात की चीज है, वो तो अभी पिछले 30-25 साल में आई है। So I said let's bring the dupalli topi back, which used to be, which is a Hindustani invention, which is an Islamic thing but also non-Islamic, which is a kind of a गंगा जमनी तहजीब की चीज है जी। और चौड़ी मोरी के पैजामे होने चाहिए। चौड़ी मोरी के पैजामे आजकल कोई नहीं पहनता, लेकिन एक जमाने में, अब सब लोग अलीगढ़ टाइप का पहनते हैं जो पैंट की तरह का है, लेकिन एक जमाने में दिल्ली में या पुरानी आप तस्वीरें देखें तो लोग ऐसी चौड़ी मोहरी का पैजामा पहनते थे। So all these things were very thought out, all these things had a politics behind this. अब ये एक आदमी से 2 आदमी होंगे, वो तख्त पे बैठेंगे, वो ये कपड़े पहनेंगे। क्योंकि मेरा खुद का बैकग्राउंड स्टेज का था, तो हम स्टेज की लवाजिमात होंगे कि लाइट्स एक पर्टिकुलर टाइम पे ऑन होंगी, उसका एक डेकोरम होगा, ऑडियंस आके बैठेगी, एक परफॉर्मर और ऑडियंस का एक डिस्टेंस जो हमको मॉडर्न वेस्ट ने दिया है, जो इंग्लैंड से आया है, हमारे यहाँ पहले उतना नहीं था, लेकिन एक उनका डिस्टेंस और गैप, इन चीजों को शामिल करके एक तरह का एक मॉडर्न चीज बनाई हमने, जो मॉडर्न, क्योंकि हम थिएटर स्पेसेस में ही परफॉर्म करेंगे। So we have sort of brought it closer to conventions and the performance etiquette and style of modern theater in India. So yeah, a lot of thought went into this, and then yeah, it's taken off. So people think कि दास्तान कोई भी कर सकता है, कि ट्रेडिशनल फॉर्म था, अरे कोई नहीं कर सकता, लेकिन actually what you're doing is that जिस चीज को हमने बड़ी मेहनत से कंसीव करके क्रिएट किया है, एक फॉर्म दिया है, उसको एक लुक दिया है, आप वो लुक लेके अगर चले जाएं और फिर उसमें आप कुछ भी करने लगे तो ये बात मुनासिब नहीं है। क्योंकि एक चीज जो एक निकल के आई है, जो उपज है, जैसे संगीत में कहते हैं ना उपज है, कि ये राग तो हर आदमी गाता है,
यमन कल्याण बड़े बड़े उस्तादों ने गाया, लेकिन हर उस्ताद की अपनी एक उपज होती है जी। ये जो हमने किया तैयार, ये हमारी उपज थी। अब हमारी उपज को आप ले लें कि जी ये तो एक ट्रेडिशनल चीज है, लेकिन ट्रेडिशनल कोई तस्वीर तो आपको नहीं दिखती कि ऐसे कैसे करते थे। तो आपने तो जो किया वो हमने जो क्रिएट किया उसको लिया जी। और अब खैर वो अलग बहस है, उस पर मैं नहीं पढ़ना चाहता। ठीक है महमूद, पर एक बात बताएंगे, तो आपने फॉर्म के बारे में बताया, बट जो कंटेंट है वो आपके पास था, लेकिन जो एक नरेशन स्टाइल जो आप लोगों ने डेवलप किया, you know, I felt that this was something you worked very much on, and you know, I see a lot of people around the country who've taken up this form. They kind of either emulate that style or they try to do some kind of a little offshoot here and there. So could you shed some light there? Yes. So now there is an aesthetic of narration. Now the aesthetic of narration in the old traditional India had a different kind of an aesthetic. You threw voice at a different kind of a pitch. You performed open air. You did not have the mic or microphone or amplification of sound. And so if you see, for instance, you know, you can see a little shades of that maybe in the way Johnny Walker sometimes speaks, you know. Or if you go back, you know, to some, you know, odd dialogue from 20s and 30s. हमारे जो मरसिया गो, जैसे मरसिया पढ़ते हैं शियों की ट्रेडिशन में जी, या जो कुछ हमारे कथावाचक कथा सुनाते हैं, आज भी जो हमारे यहाँ कथा सुनाते हैं, तो आप देखेंगे कि उन सब का भी जो स्टाइल है वो हमारे स्टाइल से थोड़ा अलग है जी। तो हमको ये पता था कि हमें जी नरेशन करना है, मगर हमको नरेशन एक मॉडर्न थिएटर स्टाइल में करना है, एट द सेम टाइम कीपिंग द ट्रेडिशनल नरेशन का कुछ फील। सो वी हैव टू डू अ काइंड ऑफ अ मैरिज of traditional narration style and modern narration style, और उसमें फिर थोड़ा सा मिमिक्री थोड़ी सी हो, थोड़ा impersonation हो, थोड़ा डायलॉग कैसे अदा करते हैं जो एक एक्टर के लिए आसान है करना। कोई और कैरेक्टर है उसका impersonation थोड़ा सा करें, but essentially this is a form of recitation and narration, not of acting. रेसिटेशन का जो परफॉर्मेंस है उसकी जो वो अलग तरह का परफॉर्मेंस है, एक्टर का परफॉर्मेंस अलग तरह का परफॉर्मेंस है। एक्टर एक कैरेक्टर को इम्पर्सोनेट करता है एक फिल्म में या सीरीज में या स्टेज पे 2 घंटे तक। दास्तान वो 2 घंटे में कम से कम 25-30 कैरेक्टर्स करता है। अब वो हर कैरेक्टर को इम्पर्सोनेट करके उस तरह से नहीं कर सकता। सो इन अ सेंस एक्टिंग is a kind of a mimesis where you are trying to do something that you think is out there in the real world. You are trying to copy it, mime it. In a sense, Mayango is not trying to show you the world as it is. It is a world of fantasy which has been invented and explored by a creator. So it's not trying to show you the world as it is. Therefore, when you tell the world, you cannot tell it in a very realistic style. जी वो गमगीन हुए, उद्भट होने लगे, सोच कर तुम निकला नहीं। You have to detach yourself from the character and you have to remain the narrator. तो उसका एक स्टाइल है, वो धीरे धीरे। अच्छा, पर जो भी है आपका स्टाइल ऐसा पॉपुलर हुआ कि पूरी दुनिया में आप लोग दास्तान लेकर के गए, और ये अमीर हमजा की जो दुनिया थी वो आपने सब, हम लोग तो सिर्फ अकबर के हमजा नामा से जानते थे, जो भी थोड़ा बहुत जानते थे, बट आपने उसको पूरा एक दुनिया के सामने पेश किया, एंड व्हाट अ रिस्पॉन्स इट गॉट। नाउ माय क्वेश्चन इज, फ्रॉम दास्ताने अमीर हमजा और ये जो आप लोगों ने तिलिस्मे जो होशरुबा ये सब जितना भी किया आपने, उसके बाद आपकी ट्रैजेक्टरी और जो आपका रेपर्टोयर था वो बढ़ता चला गया, और आज ये है आलम कि आपने ये दास्तान जहालत जो 50 साल वाला जो आपने रिसेंटली पेश किया, एंड कुड यू जस्ट शेयर हाउ दिस जर्नी हैपेंड? आपने कैसे उसको एक आपको कंटेम्प्रेरी लोगों ने पहले बोला कि इसकी कंटेम्प्रेरी स्टोरीज लाइए, आपने एलिस को लिया, करण को लिया, आपने दुनिया जहान के कैरेक्टर्स लिए और जिनके बारे में हम सोच नहीं सकते, खास करके वो विजयदान देता, जो सोच नहीं सकते थे कि हम लोग आप इस स्टाइल में पेश करेंगे, आपने वैसे पेश किए। सो कुड यू शेयर समथिंग अबाउट दैट प्लीज? यस, सो उसमें देखिए क्या है कि दास्ताने अमीर हमजा
मतलब it's an outstanding creation. It's in 46 volumes, as you know, 46,000 pages. इतनी बड़ी कहानी कोई ना कही गई ना सुनाई गई। और महमूद, you're cutting out. कमरा है और Mahmood, we lost you. You said volumes, and then after that we lost you. हाँ, Yeah. दास्तान अमीर हमजा जो ट्रेडिशनल दास्तान है वो 46 वॉल्यूम्स में है और 1000 पेज के एक वॉल्यूम है जी। तो वो 46,000 पेजेस का खजाना है। मतलब ऐसा है कि समझिए एक फुटबॉल फील्ड जो है वो हीरे जवाहिर से भरी हुई है जी। और मैंने अभी तक उसका सिर्फ एक नग उठाया है। अभी हजारों लाखों मेरे पास वहाँ उसमें मौजूद हैं रिचेस। तो वो काम जिंदगी भर का है और बहुत से लोगों का है। उम्मीद है वो उसकी हम और डेप्थ को और उसकी चीजों को और दिखाएंगे आगे इंशाल्लाह जी। लेकिन दास्तान अमीर हमजा में वैसे तो बहुत से रस हैं। करुणा रस भी है, वीर रस भी है, उसमें विभत्स रस भी है, सब तरह के रस उसमें मौजूद हैं। लेकिन उसका एक तरह का मिजाज है, जैसे पीजी वुडहाउस का एक खास मिजाज है जी। या जैसे सुरेंद्र मोहन पाठक का एक खास मिजाज है जी। या गुलशन नंदा का मिजाज है। जैसे फिल्म डायरेक्टर्स का, राइटर्स का होता है, अपना अपना मिजाज होता है। तो वो एक खास मिजाज की चीज है, वो बहुत अच्छी चीज है, इसमें कोई शक नहीं। लेकिन हमारी आज की दुनिया में लोग बहुत तरह की कहानियां सुनना चाहते हैं और लोगों की ये भी एक्सपेक्टेशन है कि जो सुन रहे हैं वो हमारे आज के अहद के बारे में कुछ कहता हुआ मालूम है। तो हमने फिर जब पार्टीशन के 60 साल हो रहे थे तो उर्वशी बुटालिया ने कहा कि पार्टीशन पे कुछ करें। तो वो पहला काम था जो मैंने उठाया। तो पार्टीशन में कुछ करने का मुझे ये लगा कि भाई कोई उस पर स्टोरी लिखना कोई बात नहीं है, ऐसे लिखना कोई बात नहीं है। मैंने बहुत सारी चीजें जो पढ़ रखी थी और मेरी रिसर्च चुकी थी। अब यहाँ पे जो है दास्तानों को बनाते वक्त पार्टीशन पे बनाया, फिर सेडिशन पे बनाया, विजयदान लेखा पे बनाया, फिर महाभारत पे बनाया, सरस्वती माँ पे बनाया, मैंने अभी दास्तान श्री राज शुक्र की राग दरबारी पे बनाया, एलिस पे बनाया। बहुत सारे काम मैंने किया और कुछ और मेरे साथियों ने किया है। तो क्या है कि इन दास्तानों को जब आप बनाते हैं तो ये एक बनाने का काम है, इसमें बहुत सारी रिसर्च जरूरी होती है। और एज ए हिस्टोरियन फिर मेरे पास एक्सेस है चीजों का। राग दरबारी पे जब मैं दास्तान बना रहा हूँ श्री राज शुक्र की, तो एक पॉलिटिकल दास्तान है, एक पॉलिटिकल स्टोरी है। पॉलिटिक्स पे अगर आपको कुछ कहना है तो पॉलिटिक्स पे सबसे बड़ी बातें जो दुनिया में कही गई हैं वो सब अरिस्टोटल ने कही हैं। पॉलिटिक्स पे बड़ी बातें प्लेटो ने कही हैं, इब्न खल्दून ने कही हैं, मैकियावेली ने कही हैं, हॉब्स ने कही हैं। तो जब आप पॉलिटिक्स पे कोई बात कहना चाह रहे हैं तो ये बड़ी बड़ी बातें जो कही गई हैं इनको भी लेके आना चाहिए आप। इस तरह से वो चीजें मेरी दास्तान में शामिल हुई जी। अब बात क्या है कि दास्तान का करते करते देखिए दास्तान गोई की वजह से और बहुत सारे लोग जो कर रहे हैं अच्छा बुरा जो भी कर रहे हैं, लेकिन दास्तान गोई ने हमारे लिए एक स्पेस तैयार किया है कि हम स्टेज से किसी चीज के बारे में या किसी शख्सियत के बारे में कोई ऐसी चीज प्रेजेंट करें जो ना नाटक हो, ना लेक्चर हो, ना एसे हो, ना पोएम हो, ना कहानी हो, ना कोई हिस्टोरिकल पेपर हो, मगर वो सब चीजें मिला के हमारे यहाँ एक नया मोड ऑफ नरेशन पैदा हो। आज के पहले जैसे मेरे साथी अंकित चड्ढा ने जो बहुत जल्दी दुनिया से चला गया जी। उसने जब कबीर पे दास्तान बनाई कुछ भी जानना होता था तो अमर कथा पर ज्यादा ये एक नया तरीका, एक नया फॉर्म पैदा हुआ बात को अदा करने का, एक नया फॉर्म ऑफ एक्सप्रेशन, एक नया फॉर्म ऑफ नैरेटिव समझ में आया है। नैरेटिव का लफ्ज यहाँ की है, एक नया नैरेटिव स्पेस खुला हमारे यहाँ बातों को कहने का। वो फॉर्म अलग है, दास्तान गोई के फॉर्म में दो लोगों ने बैठ के सुनाया, लेकिन दोनों लोग जो बैठ के सुना रहे हैं जिस वो नैरेटिव भी अपने आप में एक नया नैरेटिव, क्योंकि उस नैरेटिव को जिसको स्टेज से सुनाना है उसमें सुनाए जाने वाली एस्थेटिक होनी चाहिए, उसमें कहानी का रस होना चाहिए, उसमें आप डिस्कोर्स भी है, सो एक परफॉर्मेटिव डिस्कोर्स बन जाता है। उस परफॉर्मेटिव डिस्कोर्स या डिस्कर्सिव परफॉर्मेंस की जो स्पेस जो है एक नई खुली है स्टेज पे हमारे यहाँ, वो मैं अपना बड़ा कारनामा मानता हूँ मेरे हिसाब से, क्योंकि उसमें और फिर तीसरी चीज जो आई है उसमें वो है जबान।
आप जिस जबान में हम इन चीजों को पेश कर रहे हैं वो जबान ऐसी नहीं है जिस जबान में कोई कहीं भी कुछ और लिखता है। ना हिंदी में, ना उर्दू में, कहीं भी आप, ना फिल्म में, जो हमारे यहाँ एक बड़ा एक्सपेरिमेंटेशन का लाइन है, तीनों जगहों पे आप कोई आदमी ऐसा नहीं ला सकते जो आपसे कहे कि देखिए कि आप एक ही सांस में यहाँ पे आप आचार्य भर्तृहरि भी आ रहे हैं और एक ही सांस में रूमी भी आ रहे हैं। जैसा दास्तान जहालत में अगर आप उसको सुने तो आप देखेंगे दास्तान जहालत के 50 साल की जो मैंने आज शुक्ल दिन बनाई जी। तो इसकी वजह से क्या है कि हमारे पास एक स्पेस बनी है जिसमें हम अलग अलग रिवायतों को मिला के चल सकते हैं। हम हिंदी की रिवायत को भी मिलाते हैं, काग दरबारी में कुंवर नारायण सिंह भी हैं, शमशेर बहादुर सिंह भी हैं, उसमें अब ये भी हैं, बहुत तरह के हिंदी के कवि भी हैं, उसमें उर्दू की शायरी भी है। तो इस तरह से एक हमारे पास नैरेटिव बनाने की, चीज़ों को कहने की एक नया तरीक़ाकार सामने आया। और फिर जब कहने की बात शुरू हुई, फिर पार्टीशन से शुरू हुई, तो फिर दास्तान सेडिशन पे आई, फिर चौबोली ऑलरेडी एक दास्तान थी, फिर इस तरह से राहें खुलती चली गई। तो वो बहुत सारी देखिए मतलब कि वो बहुत मशहूर शेर है कि राहे मजमूने ताजा बंद नहीं का कयामत खुला है बाबे सुखन। कि सुखन का जो दरवाजा है वो कयामत तक खुला जी। कि उसमें जो है वो जिसको भी ताजा मजमून लेके आएगा वो उसका रास्ता है। वंडरफुल। बट आपने इस जर्नी में बहुत काफी कुछ सीखा होगा अबाउट योर फॉर्म एज वेल। तो आपने कैसे इम्प्रोवाइज किया उसके ऊपर, जैसे आपने कितनी सारी नई नई चीजें, बिकॉज आई सी हर दास्तान एक, इवन दो इट हैज यू नो लाइक द फील इज देयर, बट एक हर चीज नई तरह से आप पेश करते हैं। तो ये इस पे आप कैसे हाउ डू यू वर्क ऑन दिस? देखिए पिछले 3 सालों से 4 सालों से एक पर्टिकुलर काइंड ऑफ जर्नी रही है, जिसमें मतलब जैसे महाभारत मैंने किया या राग दरबारी किया या दास्तान जहालत के 50 साल की किया। मतलब मेरा जब कोर्ट केस हुआ, मैं जेल गया, मैं वहां से वापस आया, वो एक शिफ्ट है मेरी जर्नी में पिछले 3 साल में। तो पिछले 3 साल में मैंने जो सफर किया है अपना, वो पहले के सफर से अलग सफर है। ये सफर में मुझे लगता है कि ज्यादा एक तरह का गहराई है, इसमें गहराई भी ज्यादा है, इसमें जो है वो मेरी पकड़ और रेंज भी ज्यादा बड़ी है। एक तरह का ब्रेक लगने से एक तरह का रीबूट हो गया है मेरा काम करने का तरीका और काम भी, मुझे लगता है जो बहुत अच्छी बात है। क्योंकि कलाकार जब कामयाबी हासिल करता है तो वो एक रट में चला जाता है, फिर बड़ा मुश्किल होता है अपने आप को इस तरह से दोबारा वो करना। तो मैं इस मामले में खुशकिस्मत था। कहानियों को पहले आपको अपनाना पड़ता है, कहानी आपकी बन जाती है। फिर जब कहानी आपकी बनती है फिर आप उसमें टुकड़े लगाते हैं, या फिर जैसे म्यूजिक में कहते हैं गिरह लगाना। तो गिरह लगाना होता है, दास्तान सुनाने का मतलब काम है, गिरह लगाना बहुत जरूरी है। क्या है कि मैं बात कर रहा हूँ अकबर बादशाह की, और अकबर बादशाह की बात करते करते अगर मैंने ये दिखा दिया कि ये लोग जो देखते हैं सूरदास की शायरी पढ़ रहे हैं, सूरदास की शायरी सुना रहे हैं इनको बीरबल, अब सूरदास की शायरी पे वहां कुछ डिस्कशन शुरू हुआ, अब सूरदास की शायरी पे डिस्कशन शुरू होगा, तो वो डिस्कशन ऐसा कैसे हो सकता है कि वो पीछे ना जाए भर्तृहरि पे, या वो पीछे ना जाए मुतनब्बी पे, या वो आगे ना आए गालिब पे। तो फिर क्या होता है कि काव्य को समझने की, शायरी को समझने की जो सलाहियत है और काव्य को समझने के जो हिस्टोरिकल तरीके। हेलो महमूद, कैन यू हियर मी महमूद? महमूद, कैन यू हियर मी? हमारे जो इतिहास है, हमारा जो माजी है, कम से कम उसमें लिटरेचर के हद तक इस तरह के बंटवारे नहीं रहे हैं जैसे हम इस तरह के दास्तानों का, कहानियों का, शायरी का, ख्यालात का,
जिसमें हमारे जो मकान भी होते थे, हमारे जो बारादरियाँ हैं आप देखें, चाहे लखनऊ में हो, चाहे मांडू में हो, चाहे ओरछा में हो, वो बारादरियाँ भी ऐसी हैं कि जिसमें हवा, फ्री फ्लोइंग हवा इधर से उधर जाती है। ये उस तरह का हिंदुस्तान था जो महात्मा गांधी ने कहा था कि दुनिया के सारे विचार हमारे यहाँ फ्रीली आने चाहिए। Mahmood, can you tell us about your latest दास्तान? हाँ जी, ये दास्तान मैंने जो बनाई है अभी, जो हमने पहला अपना काम YouTube पे रिलीज किया जी, क्योंकि सब आदमी घर में बैठे हुए थे। ये मैंने परफॉर्म लाइव किया था ऑडियंस के सामने, पर इसको रिलीज कर दिया। तो ये मैंने बनाई थी शीला शुक्ल बहुत बड़े राइटर थे, उनकी किताब थी जिहालत के 50 साल। और जिहालत के 50 साल उन्होंने हिंदुस्तान के बारे में जो भी, क्योंकि वो सैटिरिस्ट थे, तो हर जो सैटिरिस्ट होता है वो बड़ा क्रिटिकल नजर रखता है अपने समाज पे, चाहे वो हो, चाहे परसाई हो, चाहे जोनाथन स्विफ्ट हो, या हमारे अपने उर्दू में मुश्ताक अहमद यूसुफी हो, मुश्तबा हुसैन हो जिनकी अभी डेथ हो गई परसों। तो वो बड़ी क्रिटिकल नजर रखी उन्होंने समाज पे, तो उस पर इनके ऊपर मुझे कुछ काम करना था। तो उन पे काम करते करते मैंने देखा कि संगीत में उनकी रुचि थी काफी। तो संगीत में उनकी रुचि थी तो मुझे एक रास्ता मिला उसके बहाने से पीछे जाने का। फिर उन्होंने एक बात कही उसमें कि जी हमारा जो माजी था, जो हमारा मध्यकाल था, उसमें हमारे यहाँ विचारिक स्तर पे हम इस तरह से अपने आप को गुलाम नहीं महसूस करते थे जैसे आज हम महसूस करते हैं वेस्ट की हेगेमनी के सामने। तो उससे फिर मुझे रास्ता खुला। तो फिर मैंने जो है वो देखा, चीजें मैंने पढ़नी टटोलनी शुरू की उसकी मदद से। तो मैंने 2-3 किताबें बड़ी की रही मेरे इस दास्तान को बनाने में। एक तो लल्लू लाल जी कब थे जिन्होंने बड़ा काम किया फोर्ट विलियम कॉलेज में 18वीं सदी की शुरुआत में, जब हिंदी और उर्दू की तकसीम इतनी गहरी नहीं हुई थी। और राम गरीब चौबे थे जिनके हिस्टोरियन शाहीन अमीन काम कर रहे हैं, वही बनारस के करीब के रहने वाले थे, वो बनारस और आजमगढ़ के बीच में। उन्होंने बड़ा काम किया ग्रियर्सन के साथ, बड़ी फोक स्टोरीज जमा की। तो मैंने उन जब फोक स्टोरीज को पढ़ा तो मुझे लगा कि देखिए हमारे समाज में लोग अकबर को या औरंगजेब को या दारा शिकोह को जिस तरह से जो उनकी एक तरह की याद है, वो याद लोगों की जो फोक मेमोरी है वो हमारी हिस्टोरिकल राइटिंग से थोड़ी अलग है। तो हिस्टोरिकल राइटिंग और फोक में थोड़ा सा मिसमैच है। मैं उसमें आई ट्राई टू गो बैक टू फोक मेमोरीज ऑफ दीस पीपल। फिर मैंने माइंड किया तो वो बंदिश लगाने की, गिरह लगाने की बात में मैंने कहा यार यहाँ पे तो मैं कुछ यहाँ काव्य के बारे में अच्छी चीज आ सकती। काव्य क्या है? काव्यम यशसेते व्यवहार विदेश्रेत क्षतये सद्यः परिनिर्वृतये कांता सम्मितयोपदेश युजे। काव्य का क्या उद्देश्य है और काव्य क्या होता है? काव्य होता है जो बड़ी सरसता से महबूबा की दिल फरेब बातों की तरह आपके दिल में बड़ी आहिस्तगी से अंदर कर जाए। काव्य में कोई जोर जबरदस्ती नहीं होती, काव्य में कोई आप कंप्यूटर आ जाए, हवाई जहाज आ जाए, लेकिन जो मटेरियल दुनिया है वो वही है जो अरिस्टो के जमाने में थी। अब आप एक पेड़ के नीचे से गुजरते हैं तो देखने वाले को उस पेड़ के पीले फूल नजर आएंगे, दूसरे को पता चलेगा जी अमलतास है, इसका मतलब है कि जी जेठ का महीना आ गया, जेठ का महीना आया, इसका मतलब ये कि अब हमारे यहाँ क्या क्या बातें हो रही है या हो सकती है, क्या क्या गाने इसके साथ जुड़े हुए हैं, क्या क्या फूल जुड़ा हुआ है। वो बॉटनिस्ट है, वो उसको अलग नजर से देखेगा। कहने का मतलब ये कि फ्रेमिंग जो आपकी है चीजों को देखने की, वही बुनियादी चीज है। और वही चीज पेंटिंग में है, वही चीज फ्रेस्कोस में है, वही चीज सिनेमा में है, वही चीज आइडियोलॉजी भी है। ये फ्रेमिंग क्या है? Mahmood, before we go, I just want to just last question. एक बात बताएं, आप एक स्टेलर स्टूडेंट हिस्ट्री के रहे हैं और आप अभी भी इसके बारे में काम करते रहते हैं, आपका ताल्लुक हिस्ट्री के साथ है। मेरे साथ मैं हिस्ट्री की टीचर हूँ, स्कूल में पढ़ाती हूँ, और मैं ये बहुत परेशान हूँ क्योंकि आजकल लोग हिस्ट्री पढ़ना नहीं चाहते क्योंकि उनको लगता है कि उसका कोई फ्यूचर नहीं है और उसका मतलब उससे क्या डेवलपमेंट हो रही है।
तो मुझे हाँ बिल्कुल, मैं इस फेवर में नहीं हूँ कि आप हिस्ट्री स्कूल में पढ़ाएं। मतलब मैं तो स्कूल में मेरा ख्याल से आपको जो है वो ये सब साइंस वगैरह ये सब पढ़ाना। सॉरी वी लॉस्ट यू महमूद, वी लॉस्ट यू। स्कूल में साइंस, यू सेड समथिंग। महमूद यू सेड। आप तक मेरी आवाज पहुंच रही है? जी, अब आपने बोला स्कूल में साइंस। हाँ जी, हाँ मैं कह रहा हूँ जी, स्कूल में साइंस वगैरह पढ़ाना बिल्कुल बंद कर देना चाहिए। जिन लोगों को इंजीनियरिंग वगैरह में जाना है या साइंटिस्ट बनना है वो 10वीं के बाद साइंस पढ़े, क्योंकि साइंस मैंने भी स्कूल में पढ़ी, आपने भी पढ़ी। क्या साइंस आपने पढ़ी, आपको एक लफ्ज उसका कोई याद ना होगा। बिल्कुल ना मुझे याद है, ना मुझे इससे कोई गरज है कि पंखा कैसे चलता है, कंप्यूटर कैसे चलता है। मेरे पास अपना फोन है, उसी में कंप्यूटर है, उसी में सब कुछ हो रहा है। तो साइंस, स्कूल में साइंस पढ़ने से किसी का कोई फायदा नहीं होता, ना उससे जो इल्यूसिव चीज की हम पीछे हैं, साइंटिफिक एटीट्यूड या साइंटिफिक आउटलुक, वो नहीं होता। बड़े बड़े साइंटिस्ट के यहाँ साइंटिफिक आउटलुक नहीं है, तो 10वीं तक साइंस पढ़ के आपके पास कहाँ से साइंटिफिक आउटलुक आ जाएगा। जी। 10वीं तक साइंस पढ़ाने के बजाय आप लोगों को, हाँ मैथ्स पढ़ना जरूरी है थोड़ा बहुत, हिस्ट्री थोड़ा बहुत, आप उनको जीवनियों के तरह से पढ़ाएं, आप उनको शायरी पढ़ाएं, आप उनको स्टोरी टेलिंग पढ़ाएं, आप उनको संगीत सिखाएं। उससे उनकी जिंदगी का बड़ा कहीं ज्यादा भला होगा। जिस आदमी के पास राग की पकड़ है, जिस आदमी के पास ताल की पकड़ है, वो चीज जिंदगी भर उसके साथ रहती है। 5वीं 6वीं 7वीं 8वीं 9वीं 10वीं की साइंस कभी उसके साथ कुछ भी नहीं रहती, मेरे साथ नहीं है। मैं इस मामले में बिल्कुल ही रेडिकल मेरा है कि भैया स्कूलों में साइंस पढ़ाना बंद करो, वहाँ तुलसीदास पढ़ाओ, वहाँ कुरान पढ़ाओ, कृष्ण जी की स्टोरीज पढ़ाओ, लोगों को बांसुरी बजाना सिखाओ, वो कहीं ज्यादा उनके काम आएगी। ओके, दैट्स एक्चुअली क्वाइट रेडिकल। बिल्कुल, मतलब कोई फायदा नहीं। आप देखें ना क्या फायदा होता है जिन लोगों को साइंस में नहीं जाना है, जिनको इंजीनियरिंग में नहीं जाना है। जिनको जाना है वो अलग बात है, मैं उनके लिए कुछ और इंतजाम कर लेंगे। जिनको नहीं जाना वो खामखा चाहे 4 साल क्या वेस्ट करते हैं, 5 साल 6 साल वेस्ट करते हैं। बिल्कुल, दुनिया गोल है कि फ्लैट है, बिल्कुल अच्छी बात है, हमें मालूम है दुनिया गोल है, फ्लैट है, पर मैं कहता हूँ साड़ों की यार। अच्छा महमूद, आजकल आप क्या पढ़ रहे हो? व्हाट आर द बुक्स दैट यू आर रीडिंग? मैं अभी तो फिलहाल कुछ नहीं, अभी तो फिलहाल सिर्फ लॉकडाउन है और बेटा है और घर का काम है। अच्छा, वो लोग बहुत खुशकिस्मत हैं जो इसमें कुछ पढ़ ले रहे हैं या कुछ देख ले रहे हैं, तो हमारे पास तो वो लग्जरी नहीं। अच्छा, ठीक है। So once the lockdown opens and once things go back to normal, what do you think is going to be? हमारी दास्तान गोई की वेबसाइट है dastangoyi.com। जी। हमारा फेसबुक पेज है दास्तान गोई कलेक्टिव के नाम से। जी। हमारा ब्लॉग है, हमारा ट्विटर है दास्तान गोई दी आर्ट के नाम से, हमारा इंस्टाग्राम पेज है। जिन लोगों को भी दास्तान गोई में इंटरेस्ट है वो दास्तान गोई कलेक्टिव को सर्च करें और दास्तान गोई कलेक्टिव तक पहुंचे। बहुत सारी चीज़ें हमारे वेबसाइट पे हैं, हमारे लोग बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, दास्तानें लिख रहे हैं। अभी दास्तानें महात्मा बुद्ध पे पूनम गिरधानी ने दास्तान बनाई और लिखी और सुनाई। जी। जलियांवाला बाग पे अली फारूकी ने दास्तान लिखी, बनाई और सुनाई। तो वो लोग आगे भी काम कर रहे हैं। जी, तो बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू सो मच महमूद, और बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमारे साथ अपना कुछ समय बिता पाए। थैंक यू।